You're the nurse? I mean, Adina? Yes, sir. What is going on between you and her? And I need to understand. Please stop. I wish I could. Hey guys. Chris? We have a problem with the nurse. She's a handful. तुम नहीं समझो. We are no longer slaves to the British. What's so funny? Your accent? Like bad boys. He seemed sincere. I thought I'll do something for him. Are you trying to be his wife? No. It better be no. In this country, employees are not your slaves. तुम्हारा नाम क्या है? Preeti. असली नाम? इन्ना गुस्सा? कुछ पूछ रही हो ना? Welcome to our second show of Hindi Gaurav Ki Chaupal, and today we are discussing about domestic violence and mental health issues. Domestic violence can be best described as an abuse of power, acts mainly by men in a relationship or after the separation. It amounts to a pattern of behavior which involves escalating levels of emotional abuse, intimidation, physical abuse, and violent behavior in order to gain or to maintain control over the partner. It frequently involves various forms of sexual acts without consent of other partner. As per the recent survey from New South Wales Police, women is experiencing domestic violence as 66.5%, whereas on the other hand, men is experiencing it in 33.5%. If we talk about mental illness, it's actually a health problem, and it significantly affects how a person thinks, behave, and react to the situations. It is diagnosed according to the standardized criteria. 1 of the 5 Australian will always suffer from a mental illness at some point of their lifespan. Our guest for the show is Ijaz Khan, who is working as a principal solicitor in Juris Australia lawyer Harris Park. He is the president of Pakistan Australia Association and also vice president of Subcontinental Friends of Labour. Another guest we have Shafaq Jafri, who is general secretary, and Saeed Khurram, who is creative director of Pakistan Australia Association. Kamaljit Khurana, who is clinical services manager and handling team of various health professionals from past 17 years with Western Sydney Local Health District. She also worked with UNHCR for 10 years in India. Our panel includes Anuj and myself from Hindi Gaurav, Manbir Kohli, who is a very responsible citizen of Australia and a member of Community Forum, who wish to be a part of this discussion. Mona Grover, who is a teacher by profession. बहुत थैंक यू अमृत. एंड ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का क्वेश्चन है ये बहुत ही ब्रॉड है और इसमें कल्चरल इश्यूज भी हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, जो नए आते हैं, जैसे इंडियंस हो गए या पाकिस्तानी हो गए, नेपाली, तो उनको समझ नहीं होती कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस. हम लोग अगर इंडिया या पाकिस्तान में सोचे डोमेस्टिक वायलेंस, हम लोग एसोसिएट करते हैं कि आपने बीवी को थप्पड़ लगा दिया, वो डोमेस्टिक वायलेंस है. लेकिन यहाँ की जो परिभाषा है, यहाँ की जो इंटरप्रिटेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत ब्रॉड जाती है. उसमें इट कैन ऑल्सो बी साइकोलॉजिकल वायलेंस. जैसे कि अगर आप अपनी पार्टनर को अगर आप पूरा दिन ताने मारते रहें कि तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तू बदसूरत है, तो इसको भी डोमेस्टिक वायलेंस गिनी जाती है. आप अगर अपने पार्टनर को मिसाल के तौर पे सोशली आइसोलेट करें कि उनको अपनी फैमिली से ना मिलना दिया जाए, तो उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस मानते हैं. सो उस पर बहुत सारी बारीकियाँ हैं जो हमारे जो नए सब कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं उन लोगों को समझ नहीं होती है. एंड व्हेन दे कम हियर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं और प्रेशर्स की वजह से दे डू ऑल दीज थिंग्स स्ट्रेस में आके, एंड फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, फैमिली में फैमिली में खटपट शुरू हो जाती है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया जाता है, एप्रीहेंडेड वायलेंस ऑर्डर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इट गेट्स टोटली आउट ऑफ हैंड. और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं वो भर के आती हैं. एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक टू एजाज अबाउट कि लीगल डेफिनेशन क्या है फैमिली या डोमेस्टिक वायलेंस का. एजाज, लेट्स स्टार्ट विद यू. थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी मनबीर जी. और मैं सबसे पहले अनूज जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये चौपाल शुरू किया और ये सच
ग्रेव इशू जो हमारी कम्युनिटी में है, तो इसको हाईलाइट किया। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन जिसका प्रेसिडेंट हूँ, और हमने ये इशू जो था वो कुछ अर्सा पहले रियलाइज़ किया कि हमारी कम्युनिटी में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटीज़ में ये इशू बड़ा आम होता जा रहा है। वो वहाँ से शुरू हुआ था कि जब मैं कोर्ट में सुबह जाता हूँ तो देखा कि अपने बहुत सारे देसी बहन भाई जो हैं वो कोर्ट में बैठे हुए हैं एक साइड पे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो कोर्ट में है इसके केसेस सिर्फ एक दिन सुने जाते हैं वीक में, और अगर आप उस दिन कोर्ट में हो तो आप देखेंगे कि कितने कपल जो हैं वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और रियली उनकी शक्लों से देख के लग रहा होता है कि ये यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आए और ये यहाँ पर मजबूरन आए हुए हैं। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फैमिली वायलेंस है क्या, ये रिसेंटली कुछ केसेस हाई कोर्ट में डेवलप हुए हैं, उसमें फैमिली वायलेंस की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड किया गया है। तो उसमें जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें लेके कोई अगर बंदा आपकी फिगर पे ताना देता है, आपकी कुकिंग पे ताना दे रहा है और आपको उससे हर्ट फील हो रहा है और आप उसमें समझ रहे हैं कि आपकी ईगो को हर्ट किया जा रहा है और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, तो ये सारे फैमिली वायलेंस में आते हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ अगर कोई बंदा हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में तो एक आध थप्पड़ छप्पड़ लगाना जो है वो बैक होम एक नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पर तो वो असॉल्ट के ज़मरे में आता है। सो मेरी गुजारिश जो है वो सब लोगों को, अपने सुनने वालों को यही होगी कि जब भी आपको गुस्सा चढ़ जाए, जब मियाँ बीवी में तकरार शुरू हो, ये तकरार जो है ये एक हेल्थी रिलेशनशिप की निशानी तो ज़रूर होती है, लेकिन ये तकरार उस हद तक नहीं पहुँचनी चाहिए जहाँ पर गाली गलोच हो जाए, ताना बाजी हो जाए या फिर हाथ उठाने की नौबत आ जाए, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैंने देखा है कि 3-4 जो फैक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे नोटिस में आए हैं थ्रू माई प्रैक्टिस के लोग डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली वायलेंस जो है वो क्यों होता है उनका। तो हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक सर्वे भी किया था, बहुत सारी फैमिलीज़ को, सब कॉन्टिनेंट फैमिलीज़ से हमने इंटरव्यू किया था और उनको पूछा था कि आपके मेजर इश्यूज़ क्या हैं। तो वो जो हमारे नोटिस में चीज़ आई है वो ये है कि कल्चरल इश्यूज़ हैं या एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, तो वहाँ से माइग्रेट होकर सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर आके बैक होम तो जो उनको काउंसलिंग का सिस्टम होता है कि माँ बाप काउंसलिंग कर रहे हैं, बहन भाई कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, मोहल्ले में बड़े लोग, अपनी फैमिली में बड़े लोग, उनकी एक किस्म की काउंसलिंग जारी रहती है, कंटिन्यूस काउंसलिंग होती है और उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं वो फैमिली में डिस्कस होते हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो पड़ोसियों को नहीं पता होता कि हमारे घर में, हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट इशू आप समझ लें कि आकर यहाँ पर जो आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन होती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक स्ट्रेस डेवलप हो जाती है उनमें। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट के इश्यूज़ में हमारे नोटिस में जो सेकंड बात आई वो ये थी कि क्वालिफिकेशन। अब इंडिया, पाकिस्तान या इन लोग कंट्री से जो लोग अपनी डिग्रीज़ लेकर आते हैं वो होते डॉक्टर हैं, लेकिन दे आर फोर्स टू ड्राइव टैक्सी, और टैक्सी या कोई और छोटी जॉबें जो हैं वो कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज नहीं होती। उसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होती है कि वो अपना एक स्टेटस, अपना एक मुकाम सोसाइटी में छोड़कर तो यहाँ पर एक सब स्टैंडर्ड जॉब जो वो करने पर बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो एक ये भी इशू है। उसके बाद फिर मॉर्गेज के इश्यूज़ हैं कि जब वो मॉर्गेज ले लेते हैं फिर फैमिली जो है वो फाइनेंशियली जो काफ़ी उनकी सिचुएशन टाइट हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी चिक चिक जो है वो फैमिली में स्टार्ट होती है। तो ये 3-4 मेजर फैक्टर्स जो थे ये हमारे नोटिस में आए और जिसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की। हमने डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, उसमें हमने मेंटल हेल्थ के इशू पर हमने सेमिनार किया विद इन द कम्युनिटी, और अब हम उसको ब्रॉडर कम्युनिटी में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि भाई सारी कम्युनिटीज़ जिसमें ये इश्यूज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनको अवेयरनेस जो है वो इसकी दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो छोटी छोटी तकरार होती है इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं अगर उनको एड्रेस ना किया जाए, टाइम पर उनको एड्रेस ना किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और मैं समझता हूँ कि डिज़ीज़ भी डेवलप हो जाती है, तो जिसको फिर बाद में क्योर करना खासा मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस जो है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो मेंटल हेल्थ से है। तो अगर बंदा रिलैक्स होगा और घरवाली रिलैक्स होगी तो मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। हाँ, तो एजाज, दैट वाज अ वेरी गुड डेफिनेशन। आपने काफ़ी उसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा दिया, लेकिन आपने जो एक बहुत ज़रूरी बात कही अबाउट स्ट्रेस लेवल, और मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी स्ट्रेस लेवल होता है और स्ट्रेस की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है।
तो क्यों ना कमलजीत से पूछा जाए, कमलजीत खुराना से, कि आपका क्या ख्याल है अबाउट मेंटल हेल्थ? First of all, before we start, I would like to thank you for giving us this forum to talk about domestic violence, Anuj, so thank you. And yeah, coming back to domestic violence and mental health issues, I would just like to say that there is high prevalence of domestic violence with amongst the mentally ill people, and other way around also. People who are suffering from mental health issues, they are more prone to, getting into situations where domestic violence can occur. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे किरदार नज़र आते हैं जो कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स का भी शिकार होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होते हैं। अब पहली स्टेज आती है डोमेस्टिक वायलेंस की। आप दोनों की बात से हम 100% एग्री भी हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अब प्रॉब्लम जो हमें आती है, जैसे हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया की जो हूँ जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। प्रॉब्लम ये आई, हमारे पास जो केसेस आए हैं वो पर्सनली बेसिस पर आए और वो बेचारी ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, वो डरे हुए इतने होते हैं कि पहली बात तो ये कि उनको पता ही नहीं होता कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। वो जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। अब उनको ये आगाही कैसे दी जाए कि तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है? पहले तो मेरा सवाल ये है कि हम उनको क्या हम इंटरफेयर कर सकते हैं उनके मामलात में, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई कि क्या हम इंटरफेयर करें, उनको बताएं कि तुम्हारे पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक खातून आई थी जो बहुत रोध हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम का शिकार थी, जिसका असर उनके बच्चों पे पड़ रहा था और बच्चों को उन्होंने मार धाड़ कुछ शुरू कर दी, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि बच्चे ने स्कूल में उस पर कुछ निशान थे, उसने जाके स्कूल में टीचर को बताया। टीचर का क्योंकि ताल्लुक़ पाकिस्तानी बैकग्राउंड से था तो उसने बड़ी खामोशी से उसको बुलाया और पूछा कि तुमने ये इसको क्यों मारा है? अगर टीचर किसी और टीचर के हाथ लग जाता बच्चा तो तुम पे तो केस बन जाता। अब उस बेचारी ने बताया और उसके थ्रू, टीचर के थ्रू वो मेरे पास आई। तो क्योंकि हम लोग ये केसेस डील कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो कहती है मेरा मियाँ मुझे दिन रात टॉर्चर कर रहा है, मैं पाकिस्तान अपने वतन वापस जा नहीं सकती हूँ। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें भिजवा नहीं सकता हूँ और मैं दिन रात काम भी कर रही हूँ। अब यानी कि प्रॉब्लम अंदर चल रही है। लेकिन अब हमारी सूरत हाल ये आ गई कि एज अ सोशल वर्कर मैं उसके घर में कैसे एंटर हूँ, मैं उसके हस्बैंड से कैसे बात करूँ, ये सोल्यूशन आप मुझे दें। क्योंकि देखें जब इनडायरेक्टली हम उसके हस्बैंड के पास गए और हमने फ़ील किया कि वो तो बेचारा ख़ुद शिकार है बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का, क्योंकि उसके और मॉर्गेज के जो आपने बात बताई थी बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताइए कि मैं उसकी मदद कैसे करूं, उसको कैसे आगाही दूं? थैंक यू शफक फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें थ्रू द फैमिली सोशल नेटवर्क के थ्रू इन चीज़ों को डील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस कंट्री में प्राइवेसी एक्ट जो है वो भी बड़ा पावरफुल एक्ट है। तो हम किसी को जानबूझ के उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आपको अगर ये देखें कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्यार से मोहब्बत से उनके साथ बात कर सकती हैं। और फिर ये है कि यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, काउंसलिंग सर्विस है और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लोकल काउंसिल के पास जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप वो लोकल काउंसिल में रिपोर्ट कर सकती हैं और उनको डायरेक्ट कर सकती हैं कि जी आप ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप इनसे बात करें। तो जब काउंसलिंग उनकी शुरू होती है फिर स्लोली जो है वो उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस तो आपको यही होगी कि आप उनके मामलात में दखल अंदाजी मत करें, लेकिन उनको सर्विसेज की तरफ डायरेक्ट करें कि जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी हैं। फिर अपने तौर पर अगर आप समझती हैं कि विदाउट वो इग्नाइटिंग द सिचुएशन आप उनकी हेल्प कर सकती हैं तो आप उनके साथ बात करें। क्योंकि जब आप किसी के साथ बात करना शुरू करते हैं, उनकी बात सुनने की शुरू करते हैं, तो फिर आधा बोझ उनका हल्का हो जाता है। तो आई अंडरस्टैंड दैट कि जो हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो भी अभी तक मल्टी कल्चरल सर्विसेज फुली नहीं हैं, ऑल्दो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के काउंसलर्स भी मौजूद हैं और साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और बहुत सारी सर्विसेज हमारी अपनी लैंग्वेज में भी मौजूद है। लेकिन आई थिंक दिस पर्टिकुलर इशू ये जो है इसके लिए पर्टिकुलर सर्विस जो स्पेसिफिक इशू रिलेटेड सर्विस होनी चाहिए वो शायद अभी तक डेवलप नहीं हुई। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि जो भी गवर्नमेंट के लोग सुन रहे होंगे वो इस इशू पर बात करें और पॉलिसी डेवलप करें और सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। It's good to know that if there's a friend or someone is being affected by domestic violence, is a victim of domestic violence, we can lead them to different services. That's what you just said.
But what are the different services that we can lead them to or we can tell them about? There are a number of services. Once you find out your friend or anyone who you are who you know is into this domestic violence situation, there is a helpline number, domestic violence helpline number. It's 1800 656 463. So anyone who feels that they need certain kind of help, they can access that line. Also there is a rape crisis center and sexual assault hotline, which is 9819 6565, and there is an 1800 number as well, which is 1800 424 017. Then there are women legal services who provide domestic violence advocacy service, and they have a different number, which is 1800 810 784 or 8745 6999. थैंक यू, आपने काफ़ी उपयोगी जानकारी दी। मेरा एक सवाल ये है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कोई बंदा या कोई बंदी इस मेंटल हेल्थ से पीड़ित है या इससे परेशान है, तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं और कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं अनुज जी। Domestic violence is such a taboo topic. There is a lot of stigma involved. You know, people are very shy to talk about this problem, whether it is male or female. Anyone who's victim of domestic violence, it's very difficult for them to come out in the open and talk about it. Just simply for the fact that they worry that they can be made fun of, people will not believe, and it gets very difficult for them. But there are certain ways we can make out that this person is suffering from domestic violence. For example, if a person looks very intimidated or frightened, or they are overly anxious, or else they say that their partner is constantly following them and rings them and texts them to find out where the person is or what they are doing, and actually they are wanting to check on the person and they feel pressured. Then the person who feels that they are a victim, they get regularly criticized or even verbally put down by their partners. They say that their partner is jealous and possessive and accuses them of having affairs. So if they make any such remarks, if they share any such information with you, you can make out that there is something happening. So first of all, you need to allow them to, just to ask them, probe them very, make them comfortable and try and find out more. And sometimes it's all about listening. They want someone to hear them out, and then once they start asking you for what is available, then you can assist them in finding those helplines, and you can go on internet and it's all available there. You can find out what domestic violence help assistances are available. साहब, अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेंटल हेल्थ है और डोमेस्टिक वायलेंस है, उसका एक लेवल होता है जहाँ पे जो विक्टिम्स है या फैमिली मेम्बर्स है, दे विल गो टू हेल्पलाइन और जाके खुद हेल्प ले लेंगे। लेकिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है यार, एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे वायलेंस इज़ टू मच और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज़ टू मच, एंड एज बीइंग ए एक्सटर्नल सिटीजन और एज बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, हमको इंटरवेन करना चाहिए। अगर मेरे पड़ोस में कुछ ऐसा हो रहा है जो एक्सट्रीम लेवल पे है, तो व्हाट आर दैट पैरामीटर्स, मैं कैसे उसको डिफाइन करूँगा कि यहाँ पे अब मुझे इंटरवीन होना पड़ेगा, मेरे पड़ोस में कुछ हो रहा है, या मतलब कि आप लीगली या कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताएं तो इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जी। ये लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि हम किसी के घर का दरवाज़ा तो नहीं खटखटा सकते जाके, लेकिन अगर आप समझें कि वाकई इस घर में कुछ इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस के इश्यूज़ हैं, तो आप ये जो सर्विसेज अभी कमलजीत ने बताई हैं उनको कांटेक्ट करके तो उनको बता सकते हैं जो आपकी रीडिंग है। अगर समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी की लाइफ इन डेंजर होती है, तो आप वो जो 000 मिला के तो उनसे बात कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन में एक DVLO हम उनको कहते हैं, ऑफिसर मौजूद होता है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस ऑफिसर, वो मौजूद होता है। तो आप अगर समझें कि किसी
कोई मामला इतना शदीद है कि इसकी रिपोर्टिंग पुलिस को करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बजाय इसके कि आप जाकर किसी को उनको मिलें या उनके साथ बात करें और वो बात जो है फर्दर इग्नाइट ना कर दे उनकी फाइट, तो उससे बचने के लिए आप DVLO से पुलिस स्टेशन से बात कर सकते हैं कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको चेक करें। तो अगर वहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज, जो पहले जिसको कम्युनिटी डिपार्टमेंट कहा जाता था, अब उसको कहते हैं DHS, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज। अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आप उनको, उनकी हॉटलाइन है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको इतला दे सकते हैं कि इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे नोटिस में आई हैं जो कि बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उस पर मुझे रिस्क लगता है। तो दे कैन मॉनिटर, उनके पास पावर्स भी हैं और लीगली वो फैमिली को विजिट भी कर सकते हैं। तो आपको ज़ाती तौर पर इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो मैंने बताया अभी उन अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट करके तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एजाज साहब से ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस का तो इन्होंने बता दिया कि ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ में जो भी क्लैशेस वगैरह होते हैं दोनों सफ़र करते हैं उसमें, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सफ़र किड्स करते हैं क्योंकि उसी घर में रह रहे हैं, वो सब कुछ उन्हीं के सामने हो रहा है। तो उस बारे में आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए किड्स के बारे में? क्योंकि ऑब्वियसली जब वायलेंस उनके सामने होगा तो ऑब्वियसली वही चीज़ वो अडॉप्ट करेंगे, वो एजुकेशन से कट ऑफ हो जाएंगे, घर में अजीब सी एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए? जी कमलजीत जी, आप कुछ इसमें एडिशन करना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि बच्चों के साथ, उनके साथ हरकत नहीं करें, उनको तंग नहीं करें इज़ वन थिंग, बट द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ that these kids, they are living in a family, they are watching, they, even if they are in the other room, they are watching what's happening, they can hear you, they can see you, and these people, these little kids, their development and growth can be severely affected if they are witnessing domestic violence. And usme kya hota hai, there are number of behavioral problems, in kids who are witnessing domestic violence. They get very withdrawn, they get very intimidated, they are scared, and sometimes these kids can get very angry and they overact, they don't want to mix up with others. There's a lot of stress which they are going through. Unka their studies get affected as well. Mona will know very clearly, kids who experience domestic violence, there is a lot of absenteeism. People tend to change schools because they feel very conscious that what's happening at their home, it's known to other people, so they frequently change schools. So teachers can sometimes pick up these things as well. तो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है कि मियाँ बीवी एक रिलेशन में है, तो व्हाट अबाउट द रिलेशन कम्स टू एंड? कोई भी जो औरत है या मर्द है वो अपनी शादी को इस तरह नहीं तोड़ना चाहता बिकॉज इट्स वेरी कल्चरल टू अस। सो व्हाट अबाउट अगर वो शादी एंड हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, उसके बाद भी कुछ तरह की हरासमेंट्स या कुछ तरह का वायलेंस होता है। सो समटाइम्स पीपल आर रियली स्मार्ट कि किसी दूसरे बंदे को उसका जो प्रूफ ना हो, तो हाउ वी कैन डील विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? हाउ वी कैन से दैट नो आई एम गेटिंग हरास और आई एम गेटिंग इफेक्टेड बाय द वायलेंस, बट वो चीज़ हम कैसे बता सकते हैं किसी को? इज़ देयर सम इंडिकेटर्स और इज़ देयर समथिंग वी कैन गो एंड आस्क हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप बताएं हमें क्या करना है? तो वंस द रिलेशन इज़ एंडेड, व्हाट द सर्कमस्टांसेस कैन बी डन? जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक 3 एस्पेक्ट आपके क्वेश्चन से मैं सोच रहा हूँ। एक तो नंबर 1 की हरासमेंट क्या है, तो पहले लेट्स टॉक अबाउट हरासमेंट। कि हरासमेंट की डेफिनेशन जो है वो हर एक की अपनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लीगल डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट है वो ये है कि किसी भी एक्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी, अगर आप इंटिमिडेशन फील कर रहे हो और या आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर आप समझते हो कि मुझे इसने इंसल्ट किया है, इंसल्ट है, वो भी आप हरासमेंट के ज़मरे में आ सकती है। फिर ये कि काम के ऊपर जब आप जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर आपके जो बॉसेस हैं या आपके कॉलीग्स हैं, अगर वो आपको सर्टन किस्म की तंज करते हैं जिसकी वजह से आप हर्ट होती हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी है और वो हरासमेंट भी है। सो लेट्स ब्रिंग इट बैक दिस हरासमेंट इनटू द रिलेशनशिप। अगर
जो आपके रिलेशनशिप हैं वो एंड हो गए हैं। आपने जो बात की कि जो रिलेशनशिप एंड हो गए हैं या सेपरेशन है, तो एंड और सेपरेशन में दोनों में फ़र्क है, जो कि हमारे सुनने वालों को और हमारे सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। कि जो सेपरेशन होती है कि जिस दिन आप एक दूसरे से सेपरेट हो गए, घर से चले गए, एक पार्टनर जो है वो घर से चला गया, तो वो 12 महीने वो उससे सेपरेट रहेगा, तो फिर वो डिवोर्स होगा। सेपरेशन में रिकन्सिलिएशन के चांसेस होते हैं, डिवोर्स के बाद जो है वो रिकन्सिलिएशन के चांसेस नहीं होते, फिर दोबारा मैरिज ही करनी पड़ती है। तो अब आप ये जो सेपरेशन है ये अंडर वन रूफ भी हो सकती है कि लेट्स से कि आप हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो दोनों बच्चों के लिए या किसी भी वजह से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग सोते हैं, अलग अलग अपना खाना पकाते हैं, अलग अलग वॉशिंग कुकिंग क्लीनिंग करते हैं, तो ये भी एक सेपरेशन है। तो रही बात कि ये सेपरेशन में जो आपकी हरासमेंट हो रही है, अब उसकी नेचर देखनी पड़ेगी कि हाउ सीवियर वो हरासमेंट है, आपकी जान को खतरा है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वो आपको धमकी दी जा रही है, तो उसके लिए आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली पुलिस के पास जाएं और पुलिस के पास जाके टाइम डेट के हिसाब से अपनी जो स्टेटमेंट दे दें। अब पुलिस ने असेस करना है कि सिचुएशन क्या है। अगर तो सिचुएशन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है तो डेफिनेटली वो आपके दूसरे पार्टनर से बात भी करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो ABO है वो उसके खिलाफ वो दे दें। तो अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि उसमें कोई इमीडिएट लाइफ डेंजर नहीं है, तो शायद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट तो करेंगे अपने तौर पे, सिचुएशन को देखेंगे, तो शायद उस पर वो ये ना समझें कि वो कोर्ट में ABO ले सकते हैं, तो इसलिए वो मूव नहीं करेंगे। सो रही बात कि हरासमेंट क्या है, तो अब ये माइनर चीज़ें जो हैं वो भी हरासमेंट है, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, कि जहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गए वहाँ पर अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर दोबारा पुलिस के पास भागना, कोर्ट में जाना, वो आपके लिए भी टाइम वेस्ट है, आपकी दूसरे के लिए भी टाइम वेस्ट है, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें अगर वो सीरियस नहीं है। अगर आप समझती हैं कि वो बहुत सीरियस है तो डेफिनेटली पुलिस के पास जाना चाहिए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। मैं 2 सवाल कर रही हूँ बहुत क्विकली। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे हम जिस बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अब प्रॉब्लम एक यहाँ आके ये आती है कि जब बच्चों को 000 का सबसे पहले फॉर्मूला सिखाया जाता है स्कूल में, तो हमारे बच्चे जो अब बार बार हमें इस चीज़ से ब्लैकमेल करने लगे हैं, तो हम उससे कैसे बाहर आएँ। अच्छा, मेरे पास एक थोड़ा सा सलूशन मौजूद है, मैं बताऊँगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की बातें हो रही हैं, हम यहाँ आ जाते हैं लेकिन हमारे साथ हमारा कल्चर भी चल के आता है, और बेचारा इतना लंगड़ा लूला चल कर आता है वो कल्चर कि वो हम कहीं के नहीं रहते, ना आधे तीतर आधे बटेर। जब हम यहाँ आकर इसी तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे होते हैं, और ये रियलिटी है जो हम आसपास अपने देख रहे हैं, अब वो बेचारी ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, मैं ज़रा थोड़ा ख़वातीन के लिए ज़्यादा हमदर्दी रखती हूँ तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो ख़वातीन जो है वो अब जब बेचारी अपने शौहरों से घरों में पिट भी रही हैं, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है जो एजाज भाई जानते हैं, जो हम हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं जो हम डील कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मर्द हजरात एक्सेस ही नहीं दे रहे थे उनको कि वो सेंट्रल लिंक में जा सकें, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उनके कितने राइट्स हैं या उनको क्या मिलता है, या उनके पास वो मोबाइल तक का एक्सेस नहीं। यानी हम इस दौर में भी इस जाहिलियत का शिकार हैं। अब अगर वो बेचारियाँ अपने पेरेंट्स से, ये रियलिटी है, आप सब मानिएगा इस चीज़ को, कॉल करके ये कहती हैं कि भाई हम तो पिट रहे हैं यहाँ पे, आपने तो कहा था बाहर मुल्क जा रहे हैं, वो ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, तो आपको पता है जवाब वहाँ से क्या आता है कि तुम कोई निराली नहीं हो, हम भी पिटे थे, तुम भी पिटे हो। अब इससे कैसे बाहर आया जाए? तो इससे बाहर आने का भी तरीका आप लोगों को यहाँ से हमें बता के जाना है कि क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो ज़रूरत क्या इस चीज़ की नहीं है कि हम ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं इनको फाल करें, यानी एक्टिव करें, वो डिस्कशंस करें आपस में, इन आपके क्या कहते हैं महिलाएं, उनको भी बुलाया जाए, मर्द हज़रात को बुलाया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए, एजुकेट किया जाए कि तुम उस कल्चर को पीछे छोड़ कर आओ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब हमारे घरों में सालन बनता था तो मोटी मोटी बोटियाँ तो निकाल के रख दी जाती थी भैया के लिए। अब वो मोटी बोटियाँ खाने का आदी जो है वो यहाँ आकर भी उसी मोटी बोटी का सिलेक्शन चाहता है कि उसके लिए किया जाए। दूसरी तरफ जब मैं इंडिया के बैकग्राउंड में देखती हूँ, तो जब मुन्ना स्कूल में पिटकर आता था तो पापा जी कहते थे बड़ी बहन से, तुम दीदी हो तुम जाओ
और जाकर जो है तुम देखना किस बच्चे ने मारा था, उसको छोड़ना नहीं, लगा कर आना। लेकिन जब रक्षा बंधन का दिन आता है तो भाई राखी बांधेगा क्योंकि भाई जो है तुम्हारा वो हिफाजत करेगा। हम उस सोच से उठकर आए हैं, तो अब वही सोच हमारे साथ यहाँ आ रही है। अब मुझे बताइए कि जब माँ बाप भी कह रहे हैं पिटती रहो, शौहर कह रहा है पिटती रहो, भैया को बना दिया गया है सुपीरियर, अब हम उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि हम इससे मुस्तकिल स्ट्रेस में आ रहे हैं। अब ये आप दोनों मुझे इसका जवाब दे के जाएंगे। शफाक, आपने बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि जब आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक सवाल दिमाग में हमेशा आता है कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं कि भाई स्ट्रेस था, आदमी स्ट्रेस था, वो नौकरी के लिए स्ट्रेस्ड है, वो मॉर्गेज के लिए स्ट्रेस्ड है, तो हम लोग वही स्ट्रेस तो वो औरत के ऊपर भी है, लेकिन वो क्यों नहीं वायलेंट हो रही? क्योंकि जो मेजॉरिटी केसेस में आप देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, द परपेट्रेटर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज़ मेल। मेजॉरिटी केसेस में एक्सेप्शंस हैं उसके, बट आप 80-90% केसेस में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेस की जो हम लोग एक अम्ब्रेला में छुप रहे हैं अपने आप को, आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट। उसके पीछे कल्चरल इश्यूज़ है, जैसे आपने कहा, एंड वो कल्चरल इश्यूज़ जब तक हम लोग उसके ऊपर एज अ कम्युनिटी काम नहीं करेंगे, तो जैसे आज की जो चौपाल है, या दिस इज़ वन स्मॉल स्टेप कि इससे लोगों को जाके थोड़ी जागरूकता आएगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसे वाली बहुत सारी चौपालें होनी चाहिए, ऐसे वाली बहुत सारी डिस्कशन होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपने वो एसोसिएशंस की बात की कि उनको एक्टिवेट किया जाए, लेकिन सिर्फ एसोसिएशंस के ज़रिए से नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली हम लोगों को एज सिटीजन्स अपनी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर डालना है कि भाई दे हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन कम्युनिटीज़। सिर्फ वो नहीं तो पहुंच जाते हैं कम्युनिटीज़ के पास में वोट के टाइम पे, बट दे हैव टू रियली स्टार्ट पंपिंग इन मनी। एजाज इज़ ऑल्सो स्टेपिंग इनटू पॉलिटिक्स, एंड दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू रिमेंबर कि कल जब भी आप जाएंगे वहाँ पे, तो हमारी कम्युनिटीज़ में पैसा कहाँ आ रहा है, वो जो एजुकेशन कैंपेन्स के लिए पैसा कहाँ आ रहा है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात जो मेरे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है कि जो लोग नए आते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी तकरार हुई, तकरार कितना क्यूट लगता है, लेकिन तकरार नहीं, लड़ाई हुई, तो वाइफ ने डर के पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने एवीओ ले लिया हस्बैंड के अगेंस्ट, एंड देन उनके बीच में एक वो जो छोटी सी तकरार थी वो एक पूरे डिवोर्स तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। सो मुझे एक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फीमेल्स ऑल्सो, हमारी जो कम्युनिटी की हैं, लेडीज़ हैं, कि जब भी आप सोचें कि पुलिस को इन्फॉर्म करना है या पुलिस को इन्वॉल्व करना है, तो इसके पहले आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपकी सेफ्टी एट थ्रेट है, तो यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व द पुलिस। एंड आई थिंक जो सोशल जो आपके सपोर्ट्स हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके पहले उसको एग्जॉस्ट कीजिए और फिर पुलिस के पास जाइए, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार उल्टी हो जाती है बात। जो इंस्टेड ऑफ वो पुलिस जब ये एवीओ ले लेती है तो वो दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, चाहे वो वाइफ चाहती भी हो, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाते हैं, और फिर और स्ट्रेस और फिर और लड़ाई। सो एज अ ग्रुप, आप प्लीज़ मोना, आपके पास कोई सजेशन होगा कि कैसे, हाउ डू वी एजुकेट आवर कम्युनिटी अगर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट एल्स कैन वी डू? I would suggest that to raise awareness in the community, I think it's very important that we have get-togethers, or we have, we celebrate a lot of festivals. So we should have a forum there where people can come and find out about domestic violence and how to get out from there, or how to find these help, or all the services that we have talked about. I think this is one of the tents that should be in every festival that we celebrate, because that's a mass sort of a place where people come, they enjoy, they look at the cultural functions. But I think if we have some sort of awareness in that area, I think that would really help spread it in the community. थैंक यू मोना जी। मनवीर भाई, जैसे आपने कहा कि संस्थाएं आगे आनी चाहिए, वो उनसे तो हम कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके अध्यक्ष लोगों से बात की, 1-2 ने कंफर्म भी किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक जो हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी नेता बनती हैं, और वो उन्होंने, मैंने कहा कि आप आओ, तो ना उन्होंने ना बोला ना हाँ बोला। हाँ, अगर माला पहनाने का कोई प्रोग्राम हो तो सब आ जाते हैं। बॉलीवुड के बहुत प्रोग्राम यहाँ होते हैं हमारी कम्युनिटी में, पर लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे पुलिस आके लोगों को अवेयर करे, या जो हमारी समाजी संस्थाएं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे समय समय पे कुछ गोष्ठियाँ चलें, है ना। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या, हमारे नेता इतने ज़्यादा, इतनी संस्थाएं आपस में लड़ने झगड़ने में इतने व्यस्त रहते हैं, जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो हम लोग भटक गए।
अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें संस्थाओं से उम्मीद ना करके इंडिविजुअल अब काम करना चाहिए, जिसमें आदमी की जो भी विशेषता है वो उसको आगे लाके और लोगों को साथ में लाके काम करे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे भी माँ बाप को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक फैमिली आई इंडिया से, उनके 2 बच्चे थे, एक 8 साल का था, एक 3 साल का। 8 साल का बच्चा स्कूल में जाके सिखाया कि अगर कोई भी माँ बाप को तुम्हें परेशान करते हैं तो आप 000 मिला दो। माँ बाप को उन्हें बोला मुझे मोबाइल चाहिए। वो नए नए इंडिया से आए थे, उन पे पैसे नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। बच्चे ने पुलिस बुला ली, उसके फादर को ले गए। जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो सब लोगों ने पुलिस को समझाया। वो मामला बड़े मुश्किल से रफा दफा हुआ, नहीं तो उसके फादर चार्ज हो जाता। जो छोटा बच्चा सब देख रहा था, 3 साल का था। एक दिन माँ बोलती है बेटा ये कपड़े पहन ले। बोलता है मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ये कपड़े पहनूंगा। माँ ने बोला नहीं बेटा ये पहन ले। कहता नहीं पुलिस 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 चिल्लाने लगा। उसके माँ बाप इतने डर गए वो वापस इंडिया लौट गए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं। और वास्तव में हम लोग कहते हैं कि हमेशा फीमेल विक्टिम की बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी में मेल विक्टिम भी बहुत ज़्यादा हो गए, पर वो आगे नहीं आते हैं। उनके साथ भी बीवियां खूब अत्याचार करती हैं, वो नहीं बोलते। बीवियां जब वो घर जाते हैं, घर जाती उनकी बीवियां उनसे लड़ने लगती हैं। पर वो हमारे कल्चर में सिखाया जाता है तुम मर दो तुम सो, कोई बात नहीं, बीवी तो कहती ही रहती है कोई बात नहीं। ताना तो बीवी मारती रहती है। बीवी सबसे पहले देखो, आप बोल रहे हो कैसे टॉर्चर आदमी को किया जाता है। कैसे तुम कहाँ बैठे हो, हर 10 मिनट बाद कोई फ़ोन करके पूछा तुम कहाँ बैठे हो, ये भी तो एक हरेसमेंट है। ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता। आप बताइए। एक तो आपने ये चौपाल चालू किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम लोग अभी जो टॉपिक में जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव मैटर है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लेट अस डिफाइन द डोमेस्टिक वायलेंस, डिफाइन व्हाट इज़ डोमेस्टिक, डिफाइन व्हाट इज़ वायलेंस, डिफाइन व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ। सब्जेक्टिव मैटर में जाएंगे तो ये चौपाल हमारा सालों साल चलता रहेगा। लेकिन मतलब बात को अगर आगे बढ़ाना है तो मैं कहूँगा कि अगर आप बोलते हैं कि एब्सेंट ऑफ वॉलंटियर है या एब्सेंट ऑफ लोग हैं जो इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह के किस्से आपने कहा है कि एक फैमिली था जो इंडिया वापस चला गया, ऐसा जो भी हो रहा है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर। तो वो इनडायरेक्टली कभी कभी क्या होता है कि आदमी एम्फेसाइज करता है और उससे कुछ सीखता है। तो हम लोग लेट अस टेक अ कॉल कि वी एवरीवन राइट वन आर्टिकल इन दिस न्यूज़पेपर एवरी इश्यू एंड लेट अस एक मुहिम चलाया जाए और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कुछ पैरामीटर्स भी रखते हैं कि उसको मेज़र करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं। व्हाट इज़ योर आइडिया? शफक जी ने अभी पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायरा है परवीन शाकिर जिनका शेर कहा, तो उनका एक शेर है वो बहुत ही रिलेवेंट है इस टॉपिक पे। वो कहती है कि मुझे तलाक तो दे रहे हो गुरूरो बड़े कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। तो मेरे महर तो बात कभी कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाती है। तो इस चौपाल को हम लोग कंक्लूड करते हैं और उस जगह ले जाते हैं कि जहाँ से बात को वापस ले आया जाए। जो फैमिली का थीम है, फैमिली विच इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सोसाइटी, उसको बचाया जाए। और हम लोग साथ में मिल के एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं अपने आप में एक मुहिम है। कोई नहीं चलेगा तो हम साथ में करेंगे और इसको कंक्लूड करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का प्रण लेते हैं। तो साहिल के इसी खूबसूरत शेर पे आज की जो चौपाल है आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, लेकिन नॉट विदाउट थैंकिंग अनुज फॉर इतनी खूबसूरत जो टॉपिक लिया और सबको इकट्ठा किया। और ऑफ कोर्स विशाल फ्रॉम एवरग्रीन मेमोरीज जिन्होंने कैमरा वर्क आज का किया, एजाज जी जो कि आज के लीगल एक्सपर्ट थे, कमलजीत जो मेंटल हेल्थ पे और कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन, एंड देयर वाज सो मच मोर दैट कमलजीत के पास था लेकिन समय की कमी पड़ गई। मोना और अमृतपाल, शफक, खुरमिया एंड साहिल। तो मुझे लगता है कि वी डिज़र्व अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवरसेल्व्स। तो अगली जब चौपाल बैठेगी तो देखते हैं कि क्या डिस्कशन होती है।